Welcome to my YouTube channel Politics in World. In this video I will try to explain neorealism. While before going on to neorealism, I would suggest those who want to understand neorealism first try to understand realism as well as classical realism. You will find the links of previous videos below in the description. Anyway, let's start with neorealism. In the very first part, we will try to learn what is neorealism, its basic assumptions, and what is newness in neorealism. Thereafter, I will try to briefly explain Kenneth Walt's three elements of neorealism and then a brief comparison between classical and neorealism. न्योरियलिज्म को ज्यादातर केनेथ वाल्ट्ज के नाम के साथ एसोसिएट किया जाता है। न्योरियलिज्म एक ट्रांसफॉर्मेशन है क्लासिकल रियलिज्म का इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। न्योरियलिज्म इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल रियलिज्म बिकॉज इट गिव्स मच इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड एज एनार्किकल इन नेचर। न्योरियलिज्म का फोकस इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा है रेदर देन ह्यूमन नेचर। न्योरियलिस्ट इसी इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट के बिहेवियर यानी स्टेट कैसे बिहेव या एक्ट करती है इंटरनेशनल अरीना में उसको एनालाइज करने की कोशिश की जाती है। न्योरियलिज्म ने इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को न सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसीडर किया बल्कि इस बात पर भी जोर दिया है कि कॉन्फ्लिक्ट, लस्ट फॉर पावर और सेल्फिशनेस जो बेसिकली ह्यूमन नेचर में है वो बेसिकली इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की वजह से है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट न्योरियलिज्म emphasized that in international system the unavoidable conflicts resulting from selfishness and insatiable lust of power of human beings is actually due to the anarchical structure of international system. What is newness in neorealism? To answer this, we can say that the shift of emphasis is newness in neorealism. For example, classical realism का emphasis human nature पर ज्यादा था, but neorealist emphasized much on international structure which is anarchical in nature. So overall neorealist के बारे में हम कह सकते हैं कि except this shift of emphasis, the understanding and explanation of international politics remains almost सेम। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह ऑर्थोडॉक्स रियलिज्म ने पावर पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट, इररिलेवेंट रोल ऑफ मॉरलिटी, सिक्योरिटी, सर्वाइवल, स्टेटिज्म वगैरह की बात की है, सिमिलरली न्यू रियलिज्म में भी इन वेरिएबल्स की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस कंसीडर की जाती है बट अंडर न्यू चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखे हुए। न्यू रियलिस्ट आल्सो एग्रीज दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एन अरीना ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर बट दे डू नॉट कंसीडर ह्यूमन नेचर इज रिस्पॉन्सिबल or we can say as driving force behind this power struggle between states in international system. Instead of human nature, neorealists argued that security competition and unavoidable interstate conflict are responsible for this power struggle between the states due to unavailability of any supreme authority above the states in international system. Neorealist का मानना है कि security competition और interstate conflict की वजह से international system में पावर को अचीव करने की एक स्ट्रगल कंट्रीज के दरमियान हमेशा रहती है जिसकी बुनियादी वजह एब्सेंस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई सुप्रीम अथॉरिटी मौजूद नहीं है और इसी वजह से हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से स्टेट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। बिफोर द इमरजेंस ऑफ न्योरियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म वाज ए डोमिनेंट अप्रोच इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बट इट वाज इन 1979, Kenneth Waltz, American political scientist, considered to be the father of neorealist, who called this approach in question. Rather, we can say that he transformed realism by setting out a new approach to study international relations through his book Theory of International Politics, which was published in 1979. Kenneth Waltz ने international system का structure 3 important elements के basis पर define किया है। Number 1 important element जो Kenneth Waltz ने बताया है वो organizing प्रिंसिपल है। केनेथ वाल्ट्ज ने 2 तरह के ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई किया है। नंबर 1 एनार्की एंड अदर इज हियरार्की। एनार्की इसका मतलब है कि इंटरनेशनल सिस्टम एक अनार्किक सिस्टम है, यानी कोई भी हायर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इंडिविजुअल स्टेट्स पर रूल्स इन्फोर्स करे। इस सिचुएशन में स्टेट्स अपनी मदद खुद करती हैं और स्टेट्स का मेन एम सर्वाइवल है और इसी सर्वाइवल की वजह से स्टेट्स एक दूसरी स्टेट्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं। इट मींस स्टेट ऑपरेट with the
main aim of survival and their interaction with other states reflect their desire to survive. So it is clear that Kenneth Waltz firmly established anarchy as the defining characteristic of the international system. Hierarchy. It is hierarchy which he used for the basis of domestic order. So second important principle which Kenneth Waltz identified is differentiation of units. In this element, unit means individual states. Kenneth Waltz differentiation of units को explain करते हुए कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम स्मॉलर यूनिट्स को मिलकर बना है और ये यूनिट्स ही स्टेट नेशंस हैं. अकॉर्डिंग टू केनेथ वाल्ट्ज, ईच यूनिट्स परफॉर्म सेम बेसिक फंक्शंस विद इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक सिस्टम एंड ईच यूनिट इज फ्री, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन इन इंटरनेशनल सिस्टम. केनेथ वाल्ट्ज का मानना है कि हर एक यूनिट सॉवरेन है और हर एक यूनिट मीन स्टेट सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ टैक्स, म्युनिसिपल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन पॉलिसी वगैरह. ये सारे फंक्शंस स्टेट्स अपने अपने डोमेस्टिक लेवल पर परफॉर्म करती हैं. Third element is distribution of capabilities. It is one of the important elements in international system. Neo-realist theory में distribution of capabilities एक criteria है जो structure को define करता है international system में. केनेथ वाल्ट्ज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्रूशियल इंटरनेशनल आउटकम्स सच एज वार, पीस, अलायंस पॉलिटिक्स एंड बैलेंस ऑफ पावर को समझने में हेल्प करता है. कैपेबिलिटीज में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं? कैपेबिलिटीज डिनोट्स ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच मेक्स अ स्टेट पावरफुल फ्रॉम अदर स्टेट्स. नेचुरल रिसोर्सेज, population of a country, demography, economic development and industrial capacity, military preparedness, technological advancement, diplomacy, leadership, ideology, national character and morale. These all are the major elements of national power. So in the international system, each state differ in respect of capabilities, and this relative capability, or you can say relative distribution of power in the international system, is the key independent variable in understanding important इंटरनेशनल आउटकम्स. न्यू रियलिस्ट्स के अकॉर्डिंग स्टेट्स की प्लेस और पोजीशन इंटरनेशनल सिस्टम में उसकी कैपेबिलिटी के लिहाज से डिटरमाइन की जाती है और इसी कैपेबिलिटी के बेसिस पर एक स्टेट बिहेव या एक्ट करती है इंटरनेशनल सिस्टम में. न्यू रियलिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि स्टेट्स की कैपेबिलिटीज ही इंटरनेशनल आउटकम्स को इंपैक्ट करती हैं. न्यू रियलिस्ट स्टेट्स को रैंक प्रोवाइड करने में दिलचस्पी रखते हैं ताकि वो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पावर्स की तादाद को जान सकें. It means neo-realists are interested in providing ranks to each states so that they can identify great powers existing in the international system. Neo-realist के according great powers ही international system के overall structure को determine करते हैं. यानी international system में अगर सिर्फ एक ही great power है तो उस system को हम unipolar कहते हैं और अगर दो great powers हैं तो international system bipolar कहलाएगा. मिसाल के तौर पर during the Cold War period from 1945 to 1989, there were two great powers, USA and Soviet Union, that constituted the bipolar international system. International distribution of power states के behavior को impact कैसे करता है? Waltz के according great powers बहुत sensitive रहते हैं दूसरे states की capabilities या power को लेकर. जब कोई मुल्क अपनी power को increase करता है तो other states अपने survival को ensure करने के लिए अपनी power को increase करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पावर खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में. और इससे ये भी पता चलता है कि पावर इज अ मींस नॉट एन एंड. दस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम इज द अल्टीमेट एम फॉर सर्वाइवल. देयरफॉर वी कैन से दैट सिक्योरिटी बिकम्स एन एंड. इसीलिए केनेथ वाल्ट्ज के अकॉर्डिंग स्टेट्स आर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स रेदर देन बीइंग पावर मैक्सिमाइजर्स. न्यू रियलिस्ट अप्रोच इस बात को जस्टिफाई करता है कि स्टेट्स को अपने सर्वाइवल के लिए सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करनी है और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पावर को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि स्टेट्स के एंड गोल्स सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करना है और सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करने का मींस पावर है. Now let us try to explain some differences. Rather, I would say a comparison between classical realism and neo-realism. Classical realist international politics को human nature की बुनियाद पर explain करने की कोशिश करते हैं, जबकि neo-realist international politics को उसके structure की बुनियाद पर explain करते हैं. तो ये एक comparison है दोनों में. एक difference भी है कि classical realist human nature की बुनियाद पर explain करते हैं international politics को, जबकि neo-realist international politics को उसके structure के बुनियाद पर explain करते हैं.
हैं। क्लासिकल रियलिस्ट के लिए पावर ही स्टेट का एंड गोल होता है, जबकि न्यो रियलिस्ट का मानना है पावर सिर्फ एक मीन्स है और एंड गोल सर्वाइवल है स्टेट का। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों में कि क्लासिकल रियलिस्ट पावर को ही अचीव करना चाहते हैं, मगर न्यो रियलिस्ट पावर को सिर्फ एक मीन्स समझते हैं और एंड गोल जो है वो सर्वाइव करना। न्यो रियलिस्ट क्लेम करते हैं कि न्यो रियलिज्म साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच है, जबकि क्लासिकल रियलिज्म सिर्फ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन क्लासिकल एंड न्यो रियलिज्म। एनीवे, आई वुड से बोथ क्लासिकल एंड न्यो रियलिज्म शेयर द सेम इंसेस्ट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्पिरेशन बिहाइंड देयर एवोल्यूशन, क्योंकि क्लासिकल रियलिज्म ने भी कोल्ड वार टाइम में एक पॉलिसी के तौर पर सर्व किया है। फॉर एग्जांपल, कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन वाज अचीव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट कोल्ड वार पीरियड व्हिच वी मार्क्ड अ पीरियड बिफोर 1979, और अपनी इंपॉर्टेंस को जस्टिफाई किया है क्योंकि 1979 के बाद से ही अमेरिका स्विच्ड ओवर टू अ ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर पॉलिसीज।